Good morning, class 11. So, as we are discussing the unit chemical bonding and molecular structure, so the topic which I was discussed even in the last video, that is a molecular orbital theory. So as I was discussing the molecular orbital theory, so I have discussed the postulates of molecular orbital theory. After discussing the postulates of molecular orbital theory, then I have discussed that how the orbitals get combined with each other. When they combine, they result in the formation of what type of new molecular orbitals. We have discussed that, right? So here with this video, first of all I'm going to show you the wave overlap. Okay, that is a constructive and destructive overlap of the waves, right? So जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, when we are having xi as a orbital, ठीक है, that is a probability picture हम बनाते हैं, ठीक है, then it is equals to xi a, मतलब xi molecular orbital अगर मेरे पास बनता है molecular orbital, ठीक है, so that is a combination of xi a and xi b. Now what is xi a? The probability picture, the wave. Okay, as electron is having both wave and particle nature, so here we are discussing that as electron is having a wave nature, so it could have the characteristic like that. Okay, now if the second, okay, the second atomic orbital if having the same wave, okay, ये होगी xi a. Okay, if the same wave nature of the second atomic orbital, okay, second atomic orbital का भी wave nature जो है that is same, so these will start overlapping with each other, they undergo combination and this is known as यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है, एडिटिव होगी. सो दिस एडिटिव लीड्स टू व्हाट, टू अ लार्ज, हमारे पास जो है वेव का करेक्टरिस्टिक लार्ज आ जाएगा, ठीक है. सो व्हाट दिस प्रूव्स दैट दिस वेव एडेड टू दिस वन, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉनिक nature, that is an electronic wave, okay, that is added to this one, then they undergo overlap. After overlapping they give us large crest and trough, right? So from here what is the conclusion, that whenever the waves they are overlapping with each other, if they are in the same phase, so that is a constructive overlap and that leads to what, the orbital, that is xi mo, which is bonding. Okay, that leads to which orbital, xi molecular orbital, right? If I'll say that the overlap is like xi a minus xi b, right? So that means the waves, those are not in the same phase, okay, they could be in the different phase. So that's why, like, the electron probability diagram when we make for the xi a, it could be like this, okay, and for xi b what is there, it could be different, okay, यहाँ पे क्या हो, it could be different. So what is there, they are not matching with each other, so this leads to what, this leads to a destructive, that is a subtraction, okay, and we get the resultant wave that is very small. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है दैट बिकम ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द टू ऑर्बिटल्स. हम कुछ ऐसे बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग, मैं आपको बना के बताती हूँ लाइक दिस, हम कुछ ऐसे बनाते हैं and we put a nodal plane in the center. So what is this represent, that the probability to find the electron here become totally zero. Why it is zero, because this is a destructive overlap and the crest and trough that we are getting, that is of very small amplitude. यहाँ पे जो amplitude मिल रहा है हमें वो बहुत ज़्यादा small है, ठीक है. So that's why एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की probability ज़ीरो हो जाती है. So इसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है. सो हमारे इलेक्ट्रॉन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टरिस्टिक के बेस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने बोला था दैट व्हेन दे ऑफ सेम फेज, उनके इलेक्ट्रॉन जो है सेम वेव में फ्लोट कर रहे हैं तो उनमें एड अप होगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो बॉन्डिंग बनता है, कम एनर्जी वाला और स्टेबल बनता है. लेकिन अगर वो आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे से, देन वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा और वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे. जब वो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो वो जो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और वो हाई एनर्जी पे होगा, सो लेस स्टेबल होगा, ठीक है. सो हमारे पास जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आते हैं, ठीक है. अभी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपसे बात की थी दैट इज़ अबाउट 1s,
ठीक है, 1s की बात की थी। ऐसे ही सेम जब हम 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं बेटा, याद रखना 2s में भी जब वो ओवरलैप होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मेरे पास दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। लाइक दैट ऑफ 1s वी आर हैविंग इन केस ऑफ 1s वी आर हैविंग सिग्मा 1s sigma star 1s, right? So मैंने क्या बताया था, with the star where is that is anti-bonding and this is bonding, so here bonding anti-bonding, so this is the picture, but the difference यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1s और 2s में क्या आएगा, the 2s is little bit large in size, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड द शेल बढ़ जाता है, सो दैट्स वाई इट विल बी लार्जर इन साइज दैन दैट ऑफ द 1s, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे s ऑर्बिटल। अब मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट, दैट इज़ अबाउट 2p orbital. Now you know that when we talk about p orbital they are 3, okay, total 3 p orbitals exist, right? Then the p orbital they are having the name px, okay, py and pz, हमारे यही नाम है ऑर्बिटल्स के, राइट। तो हमने जब इवन हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ी थी, देन वी हैव एज्यूम दैट द z ऑर्बिटल दैट इज प्रेजेंट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट इज़ जस्ट एज्यूमिनेशन, ठीक है, दैट द z ऑर्बिटल इज प्रेजेंट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये ऑलरेडी एज्यूम है तो आप z को ही मान के चलेंगे, ऑल्दो एक्स वाई भी एज्यूम कर सकते थे, बट हियर z इज एज्यूम्ड। सो इफ z इज प्रेजेंट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, okay, so what will happen, I will show it on the next page. So z, if z is present along the internuclear axis, we would have the picture like this, ऐसी कुछ पिक्चर होगी, ये होता है p ऑर्बिटल, राइट। सो इफ दिस इज द z एक्सिस वी एज्यूम, ठीक है, ये हमारी z एक्सिस है, ओके। सो ये p ऑर्बिटल है हमारा, ठीक है। अब मैं कौन से p की बात करी थी, 2pz की, सो ये हमारा हो गया 2pz ऑर्बिटल, तो उसकी ये पॉजिटिव लोब होगी और ये नेगेटिव होगी, आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन भी हमने किया था, राइट। सो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पड़ा है, और आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में भी समझाया था, द ऑर्बिटल दैट इज प्रेजेंट अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, राइट। सो इट कैन ओवरलैप, राइट, इट कैन ओवरलैप हेड टू हेड, ओके, ये हेड टू हेड क्या कर सकता है, इट कैन ओवरलैप, सो दैट्स वाई वे इफ इट कैन ओवरलैप हेड टू हेड, ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सिग्मा 2pz, ओके, मतलब ये 2pz एक एटम का होगा, ऐसे ही सेकेंड एटम का 2pz होगा, ठीक है बेटा, सेकेंड एटम का 2pz होगा प्लस नेगेटिव, ठीक है, फिर से z 2pz, सो दिस 2pz एंड दिस 2pz दे गेट ओवरलैप विद ईच अदर, ओके। सो व्हेन देयर विल बी, इसमें भी अब दो तरह के ओवरलैप होंगे, जैसे 1s और 2s में हुए थे, एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव, एक हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। जब तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, देन वी विल हैव द ऑर्बिटल पिक्चर दैट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, ठीक है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप एंड दिस इज सिग्मा 2pz, ओके। अब जब मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करती हूँ, देन वी आर हैविंग इसको इससे माइनस कर देंगे, हमारा जो सेकेंड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखिए जब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो कहते हैं, वी आर हैविंग वन साइड नेगेटिव लोब, राइट, अनदर साइड वी आर हैविंग, ये बेटा यहाँ कुछ ऐसे बनेगा, विल हैव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, सो इसको नाम देंगे सिग्मा स्टार 2pz, मतलब क्लियर हो गया होगा, अगर ये सिग्मा स्टार 2pz है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सॉरी दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ एंटी बॉन्डिंग, दिस इज़ अ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट, ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और ये कौन सा होगा, बॉन्डिंग, क्लियर है। सो 2pz जो आपका बनेगा दैट विल बी अ एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा 2pz। अब बचा हमारा कौन से दो ऑर्बिटल बचे, एक हमारा बचा 2px और एक बचा 2py। अब देखिए ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी किया था कि जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वही सिग्मा होता है, द रेस्ट बॉन्ड विल बी द पाई,
राइट। सो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे अगर मैंने ये बॉन्ड माना, ये पड़ा है ऑर्बिटल, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला और जो ऑर्बिटल है वही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। मतलब जो रेस्ट ऑफ द एक्सिस है, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो वो कुछ ऐसे मान सकते हैं हम। अगर ये जेड है तो मैं इसको एक्स मान लेती हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये हमारा कुछ ऑर्बिटल ऐसे पड़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट ऑर्बिटल पड़ा होगा, ये कौन है, 2px 2px। तो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप तो पॉसिबल नहीं है जैसे यहाँ पे था। तो हेड टू हेड ओवरलैप नहीं है, तो यहाँ पे जो ओवरलैप होगा दैट विल बी साइड वाइज वुड बी लाइक कुछ ऐसा ओवरलैप होगा। सो इसको नाम दिया गया पाई स्टार, सॉरी ये होगा बॉन्डिंग क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव है, स्टार नहीं आएगा यहाँ पे, इसका आएगा पाई 2px। और ऐसे ही इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, उसका नाम आएगा जब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा ओवरलैप, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दैट विल बी पाई स्टार 2px। सेम फॉर 2py we will have what, for 2py we will have pi 2py and pi star 2py। so overall what is our conclusion, अगर मैं conclusion यहाँ पे निकालूँ, that when we are having, when there is a atomic orbital, 1s के atomic orbital हैं, ठीक है, 1s 2s and 2p, they overlap, मतलब 1s will overlap with another 1s, okay, so 2s will overlap with another 2s and 2p will overlap with another 2p, right। so यहाँ पे अगर इनका overlap होता है, there will be overlap, ठीक है, they overlap with same 1s, 1s किसके साथ करेगा overlap with 1s, okay, 2s will overlap with 2s and 2p will overlap with 2p। so we will get the resultant, हमारे पास जो resultant आएंगे, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक दैट, हमारे पास जो resultant आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। so हमारे पास resultant ऑर्बिटल आएंगे सिग्मा 1s, ओके, सिग्मा स्टार 1s, ओके, नेक्स्ट होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ये पता है ना 2s भी सिग्मा, क्योंकि एस जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन नेचर, सो वहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप हो सकता है। सो दैट्स वाई दिस इज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, जब डिस्ट्रक्टिव होगा, जब कंस्ट्रक्टिव होगा सिग्मा 2s, ठीक है। सो लाइक दिस वी विल हैव सिग्मा 2pz कॉमा, ओके, कॉमा सिग्मा स्टार 2pz कॉमा पाई 2px कॉमा पाई स्टार 2px कॉमा पाई 2py कॉमा पाई स्टार 2py। सो लाइक दिस वी विल हैव दीज ऑर्बिटल्स, ओके। हमारे पास ये रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स आएंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ कितने बॉन्डिंग है, 1 2 ओके और 3, ध्यान से देखें प्लीज़, देखिए ये बॉन्डिंग है 1s, ये बॉन्डिंग है 2, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है 3 4 एंड 5 बॉन्डिंग हो गए। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग, ओके। सो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स। अब इनके एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके एनर्जी पिक्चर की बात कर लेते हैं। सो एनर्जी पिक्चर में बेटा आपने क्या ध्यान में रखना है, अभी मैं आपको इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स बनानी सिखाऊंगी। सो फॉर दैट आपको क्या माइंड में रखना है, प्लीज़ देखिए, जो 1s है, ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं अप टू नाइट्रोजन N2। हम यहाँ पे किन किन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, होमो एटॉमिक की, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, हम हेट्रो की नहीं बात करेंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ होमो एटॉमिक है, ठीक है। अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन अप टू नाइट्रोजन, whatever the molecule, for that you have to follow the order, that is 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s, okay, then there will be sigma 2pz, okay, for this one nitrogen, okay, there will be नहीं पहले सिग्मा 2pz नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद आएगा पाई 2px is equals to pi 2py, okay,
then there will be sigma 2pz, then there will be pi star 2px is equals to pi star 2py, which is further equals to, देन फर्दर लास्ट वन होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एनर्जी लेवल, मतलब जब आप ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे इसका, सो ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है, एनर्जी इधर को बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। सो सबसे लोएस्ट में होगा आपका 1s, ठीक है, इधर 1s और अटोमिक ऑर्बिटल होंगे, जब वो कंबाइन होंगे यू विल गेट 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सेम फॉर सिग्मा 2s। उसके बाद जो आपके पी इधर होंगे 2p ऑर्बिटल्स, तो जब आपको मिलेंगे उसके रिजल्टेंट मिलेंगे, तो सबसे पहले आपका आएगा पाई 2px पाई 2py, ठीक है, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद आएंगे एंटी बॉन्डिंग कौन से, ये वाले, ओके, एंड देन और एक चीज़ और, यहाँ देखिए मैंने क्या साइन रखा है, इक्वालिटी का साइन, मतलब ये दोनों जो हैं दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है। जो बाकी हैं यहाँ देखिए कॉमा लगाया है, कॉमा का मतलब क्या है कि एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये दोनों सेम एनर्जी पे पड़े होंगे, ठीक है। और चीज़ आपको याद रखनी है, ये ऐसा क्यों है, ये ऑर्डर आपको देखिए, आप एक लर्न कर लीजिए अप टू नाइट्रोजन, अब बचा कौन आपके सिलेबस में है अप टू नियॉन, ठीक है। सो नाइट्रोजन तक आपका ऑर्डर ये होगा, अब बचा कौन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। फॉर दैट देयर विल बी लिटिल बिट चेंजेस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू नियॉन यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर, ठीक है, दैट इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ओके, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए पाई नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz, अब आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, अब आएगा आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आपका बचेगा सिग्मा स्टार 2pz। सो डिफरेंस यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे सिग्मा 2pz आ रहा है, और यहाँ पे पहले पाई 2px और पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो आप एक को लर्न रखो, सेकंड आपको अपने आप याद रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे पहले क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट एक्सप्लेनेशन दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ओके। सो इवन इन at your standard it could not be explained, so you have to keep in mind कि this is the energy level picture of the molecular orbitals, right? सो कुछ ऐसा बनेंगे आपके पास पिक्चर्स, ठीक है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का मैंने बता दिया, एक चीज़ और, हाँ, अगर मैं बात करूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कैसे इम्पैक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है, पिक्चर्स बनाने से पहले सारा क्लियर कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिसाइड होती है किस बेसिस पे, अगर NB इज़ मोर देन NA, NB रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन से, बॉन्डिंग, B का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा हो एंटी बॉन्डिंग से। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो फील्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हैं दोज शुड बी filled more in bonding than एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल हो रहे हैं तो वो होगा, वो मॉलिक्यूल क्या है, मतलब वो जो भी आपने पिक्चर बनाया है वो स्टेबल है, ठीक है। सेकंड है, मतलब यहाँ पे ये क्या रीड करता है, स्टेबिलिटी को, ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है। और सेकंड आपने याद रखना, अगर कुछ ऐसा आता है, ये कभी होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं बॉन्डिंग से, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं बॉन्डिंग से, देन इट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी।
ये इसलिए नहीं पॉसिबल होता क्योंकि हमें यहाँ पे भी जैसे हम सेकंड आपने यूनिट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख के आए हैं। सो वहाँ पे आपने सीखा है कि व्हेन एवर यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द रूल्स दैट इंक्लूड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, राइट। सो वो सारे रूल्स आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो कंसेप्ट है, पहले हम लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल करेंगे, ठीक है, फिर पेयरिंग का भी ध्यान रखेंगे, फिर हायर लेवल पे बढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बॉन्डिंग पहले आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो एक एक एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, फिर बॉन्डिंग आते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग आ रहा है। तो इसके लिए इसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। एक ये भी हो जाता है NB इज इक्वल्स टू Na, अगर ऐसा कुछ भी है तब भी वो मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। सो ये हमारी थी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगी, बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सीखने से पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पिक्चर आई एम गोइंग टू मेक दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। So I am having two hydrogens, okay. So this is hydrogen 1, okay, this is hydrogen another, atomic orbitals I have made, right. So this is the hydrogen 1, this is the hydrogen another. So this is 1s, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, this is 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, आपको पता है 1s 1 होता है, ठीक है। So when they mix they result in the formation of two ऑर्बिटल्स, कुछ ऐसे दिखाना है क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन से बने, ठीक है। तो सेंटर में आपने यहाँ पे ऑर्बिटल दिखा दिया, ठीक है, राइट, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे बने। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, दोनों हाइड्रोजन का एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, फिर उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। मतलब देखने में देखिए कितना इजी लग रहा है, लेकिन हुआ कैसे, तो पहले उनका ओवरलैप हुआ। अब वो ओवरलैप कैसे हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ने हमें बताया कि भाई उनका जो ओवरलैप है वो दो वे से हुआ, एक तो कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव हुआ तो उस ओवरलैप को हमने नाम दिया सिग्मा 1s, और जब डिस्ट्रक्टिव हुआ तो उसको नाम दिया सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव था, एनर्जी ज़्यादा थी तो अनस्टेबल था, हाई एनर्जी पे शो किया, और ये जो है लोअर एनर्जी पे शो किया। एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी जो हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो कम होगी। अब बात करते हैं फिलिंग की। जब हम, अभी तो मैंने सिर्फ पिक्चर बनाया, इलेक्ट्रॉन अभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल करने बाकी है, राइट। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँगी तो मैं कैसे करूँगी, पहले मैं लोअर पे जाऊँगी, ठीक है। हमारे जो रूल्स क्या कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन द लोअर ऑर्बिटल फर्स्ट, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, राइट। तो लोअर एनर्जी पे मेरे दो इलेक्ट्रॉन है जो वो यहाँ पे जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो दो के दो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो रूल्स क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन शुड गो टू द लोअर एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन वहीं भेजा, और सेकंड क्या कहता है, द अंटिल द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज नॉट फुली फिल्ड वी कांट प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल। सो फॉर दैट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी आया लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ यहाँ आ गया। सो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूँ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो खाली है तो इसको लिखने की नीड नहीं है, तो ये बनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, ओके। अब जब मैं बात करती हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, अब मैं बात करूँ बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, the number of electron in the bonding molecular orbital minus the number of electron in the anti-bonding orbital divided by 2. So when you will calculate what is there here, 2 bonding में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, anti-bonding 0, so here 2 by 2 it will be 1, so the bond order for hydrogen molecule that is 1, right. What the bond order tell us about, bond order tell the number of bonds that are present between the molecule, मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है वो हम बॉन्ड ऑर्डर से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव या ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर
इज़ नेगेटिव और ज़ीरो, इनमें से कुछ आ जाता है, मतलब मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट। ओके, मॉलिक्यूल जो है कांट एग्जिस्ट, याद रखना मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है। सम केसेस में हो जाता है कि ये फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, वो फ्रैक्शन में कहाँ आता है वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, कंबाइन किए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। बॉन्ड ऑर्डर से आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाते हैं, जैसे यहाँ 1 आया तो मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। एक चीज़ और आपको यहाँ से पता चल जाती है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक करैक्टर। आई विल यूज़ अ डिफरेंट पेन क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। सो मैग्नेटिक करैक्टर का कोई आपको पता चल जाता है। मैग्नेटिक करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर क्या है कि कोई कंपाउंड डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। सो अगर तो ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में पेयर होंगे, ठीक है। सो उसको बोला जाता है, मैंने शुड आई यूज नेक्स्ट पेज, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सो अगर तो ये देखिए, अगर तो मैग्नेटिक करैक्टर में क्या है, इफ़ all the electrons are paired, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं ऑर्बिटल में तो उसको आप मानोगे डायामैग्नेटिक, ठीक है, वो होगा, उसको बोलोगे डायामैग्नेटिक। इफ़ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सिंगल ही क्यों नहीं है, ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, अगर एक आधा भी है सो यू विल से दैट एज अ पैरामैग्नेटिक। अब जब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप देखोगे, पीछे आपने देखा होगा, तो वो उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ गए। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो था दैट इज व्हाट, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। तो ये था हमारा फर्स्ट पिक्चर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। सो द नेक्स्ट वन, आप किसका बना सकते हो, हीलियम। आपको पता है हीलियम जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, पता है ना आपको, दैट हीलियम जो है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, राइट। लेकिन स्टिल आप यहाँ इसको इफ़ यू वांट टू मेक, आप इसकी पिक्चर बना सकते हो, वहाँ से आपको इसका क्लियर हो जाएगा, जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तभी आपको पता चल जाएगा ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो आप किसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, सो मैं यहाँ इसका भी बना के बता देती हूँ आपको। सो हीलियम, यहाँ पे देखिए, ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया 1s हीलियम, 1s हीलियम, ठीक है। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो, 1s2 होता है ना। सो ये हो गया। अब ये जब ऐसे कुछ बन के हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। सो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए। सो इसका नाम फिर से सिग्मा 1s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। अब देखो चार इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, दो ऑर्बिटल हैं। सो पहले लोअर ऑर्बिटल फिल करेंगे, लोअर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, ये पॉली ने बोला था, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी दो और पड़े हैं, ठीक है, दो तो आ गए, टोटल चार इलेक्ट्रॉन हैं, दो आ गए, तो मतलब नेक्स्ट टू कहाँ जाएंगे, ऊपर वाले में जाएंगे, ठीक है। सो हियर द नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन सिग्मा 1 स्टार 1s, okay, so its electronic configuration will be sigma 1s2 sigma star 1s2, it will be like this, right. When you will calculate the bond order, that will be Nb minus Na by 2, so that will be what, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 minus 2 0 by 2, it will be 0. So here you can see the bond order is 0, that means there is a no bond that is existing between helium and helium, right. So that's why it doesn't exist. Although अगर इसके
मैग्नेटिक रिएक्टर की बात करें, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हेयर, सो दिस इज व्हाट, diamagnetic. Okay, so like this you can make the orbital pictures. Okay, thank you very much. This video will be up to this one only. So the left topic that will be discussed, the last video of this unit will be by tomorrow. Thank you very much.